So hello guys, I am Saima Irfan and in this video I am gonna tell you what are my thoughts over NEET examination of 2026. First of all, I wanna tell that I have given my exam in 2024. That was my 12th. After 12th I have given in 2024 and I scored 417 marks, and after that I have given in 2024 5, in which I have scored 309 marks. And then because of the toughest paper of 2025, I got so like frustrated कि क्या हो गया, and I just literally was blank. But in 2026, if the paper was tough, if the paper was lenient or difficult, I would make sure myself to do my best and to give all my efforts, even though only 6 months are left for my NEET examination and your NEET examination. And if this NEET examination mean the world to you, then you should sacrifice everything that ever you wanted in your life. But if you want a good life ahead, mean you can change your name, even though you can change your suffix, prefix, oh no, prefix, the letter in your prefix, you can add the word doctor to it. If you can sacrifice your 6 months for that one exam, if that is so precious for you, then you can only do this thing. And you what are my views on my NEET examination is like that ki I also don't know. I also don't know what to say because 6 months are left. एंड गाइस, जैसा कि समर से विंटर आ गया, हम सबको पता ही नहीं चला, और वैसे ही समर से विंटर, विंटर से फिर समर आएगा और नीट एग्जामिनेशन तक पास हो जाएगा, हम सबको वापस से नहीं पता चलेगा 2026 आने में. इवन 2 months are left, but we feel it? No, we can't feel it because it पता ही नहीं चलता है. लाइक 2026 आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, नया साल आ जाएगा गाइज, और हम सब वहीं के वहीं रह जाएंगे. बट इफ़ यू डोंट लाइक वांट टू मेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ, तो क्या फ़ायदा रह गया हमारी इस ज़िंदगी का, व्हेन यू कांट इवन डू एनीथिंग टू योर लाइफ. So you should be prepared for what is your goal. Like, sorry, don't focus on my English, and in every video I used to say don't focus on my English. Still some people say my English is so good. No, not. And guys, I would suggest you, if you are a NEET aspirant, then I would suggest you to give your 100%. कि ये हमारी ज़िंदगी के वो 6 मंथ होंगे जिसमें हम सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे. सो आई वुड से कि हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है. टॉपर आर स्टिल स्टडिंग इन कोटा में. सारे बच्चे रात तक की पढ़ते रहते हैं, लड़के रात तक की पढ़ते रहते हैं, और अगर हम सब कंपटीशन दूसरों से करने लगे तो हम सब हर एक समय 24/7 पढ़ना पड़ेगा, तो भी शायद वो बीट ना हो पाए. सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. आपका कंपटीशन हम सब आप हैं, खुद से हैं. अगर आपने 4 घंटे कल पढ़ा, सो टुडे यू हैव टू स्टडी 6 hours a day. Like, you have to gradually increase and be competition to yourself, be your own competition, and reward yourself. So this is the like simple strategy and no more बकवास कुछ नहीं. So this is the thing you have to implement. हम खुद नहीं कर पा रही, ये अलग बात है, बट आई एम सेइंग टू यू. And remember why you have started, why you want that thing in your life. My father is my biggest motivation, I would say. And the reason you should also find your reason for why are you studying, why are you chasing this goal and not other profession, why you wanted to become a doctor. And the third, and there are so many reasons I can give you to study harder, but you should choose your way to study hard. Like, some people don't need any motivation or reason to study, so because they have a habit of studying since childhood. But in your age and this world of distraction, you should like make one reason to जो याद दिलाते रहे to focus on your goal and to भाई पीछे जा, मतलब गोल के पीछे, मतलब अरे मतलब ठीक है, जस्ट समझ गए ना मेरे जज्बातों को आप लोग. तो बस वही जो गोल को याद दिलाता रहे, वो रीज़न फाइंड करना पड़ेगा हर सबके लिए दूसरा दूसरा हो सकता है. सो जस्ट स्टडी हार्डर कि आपकी लाइफ अच्छी रहे. और मम्मी पापा जो पढ़ने के लिए डांटते हैं, वो अपने नहीं, वो आपके लिए डांटते हैं. उनको कुछ नहीं मिलेगा कह के कि आपकी लाइफ ही अच्छी होगी, आपको ही फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा. सो या गाइस, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑल्सो बी लाइक अ
एक्टिविस्ट। कोई भी काम में हम सबको वो नहीं करना है कि अगर हम सब ने कर लिया तो मज़े ही मज़े, मज़े किसी काम में नहीं है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ झंड हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, दूसरे लोग भी ऐसे कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ बेकार है, सबकी ही लाइफ बेकार है। अगर आपको लग रहा है कि एस्केप कर जाएंगे रियलिटी से अगर नीट हमारा गोल ना होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मज़े नहीं कर रहा है, हम सबको दूसरी फील्ड में भी जाना है तो वहाँ भी मेहनत लगेगी। ये कहिए कि आपको इतना तो सिलेबस 1/2% आता ही है, अगर दूसरे स्ट्रीम में जाते हैं तो वो भी नहीं आएगा, ज़ीरो से ज़ीरो शुरू करना पड़ जाएगा। तो जहाँ पे है यू शुड बी थैंकफुल व्हाट द गॉड गिवन टू यू। तो थैंकफुल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा, आई कैन गिव यू 1000 रीजन्स टू लाइक स्टार्ट स्टडिंग हार्डर, बट यू शुड मेक योर वंस। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लाइक नहीं डिमांड करेंगे, बिकॉज सबका अपना तरीका होता है पढ़ने के लिए, और आप अपना बस एक रीज़न ढूंढिए। आई वुड लाइक टू से, एंड इस 6 मंथ को बेनिफिशियल बनाइए। कहीं और अगर आपको मन है तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। लास्टली आई वुड गिव यू रीज़न कि आप अपना हाथ देखो, दीज हैंड विल सेव वन लाइफ इन फ्यूचर। तो उसके लिए तो पढ़ लो भाई, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो पढ़ लो, जिनकी आप ज़िंदगी बचाने वाली हो लिटरली। सो यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि क्या आप पढ़े हो, एंड बी फायर और अच्छे से पढ़ना। बाय गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लग रही हो तो कोई बात नहीं, बट पढ़िए अच्छे से। और हम खुद नहीं पढ़ते हैं फिर भी हम ज्ञान देने आ गए यूट्यूब पे क्योंकि हम अच्छे लग रहे थे, मेन बात तो ये है। बट ऐसा नहीं है गाइस, फेक नहीं है, हम थोड़े से तो हैं, बट यूट्यूब पे इतना तो चलता है। बाकी वैसे मेरे ईयर टॉप्स अच्छे लग रहे हैं ना, और मेरी ये फेक हेयर्स भी, और ये मेरा ब्लू कलर का आउटफिट भी, और हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आ जाते हैं। सॉरी गाइज़, अपने आप को अच्छा नहीं कहना चाहिए, कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं कहना चाहिए गाइज़, बहुत बुरी बात होती है। मेरे पापा ने मुझको सिखाया है, कभी हम सबको गुरूर प्राउड नहीं करना चाहिए अपने लुक्स के ऊपर, तो हम बहुत बुरे लग रहे हैं, ऐसा भी अब नहीं कहना चाहिए। ठीक है जो भी है, बट मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं तो आ गए हम। सो बिकॉज हाँ, एक चीज़ है, ऑनेस्ट कह सकते हैं अपने आप को, ठीक है, ऑनेस्ट है। और मेरी इंग्लिश को जज मत करिएगा इस वीडियो में। और मेरे पास माइक नहीं है तो मैंने मम्मी की लीड्स चुरा ली है इसके लिए। और गुड नाइट गाइज। आपको भी लग रहा होगा एज अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट कि आपकी लाइफ लूप में चल रही है, सब कुछ बेकार क्यों हो रहा है, टेस्ट दो फिर एनालिसिस करो, फिर टेस्ट दो फिर चैप्टर करो, फिर लूप में चल रही है ज़िंदगी। और मैंने तो घर से ड्रॉप ईयर लिया है, तो मुझको तो और ज़्यादा फील हो रहा है कि लाइक क्या चल रही है ज़िंदगी, सुबह उठो और रात हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बीत जाता है। बट वन डे इट ऑल विल बी वर्थ इट, अगर आपने अभी मेहनत कर ली। बट अगर नहीं मेहनत करी तो अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सोचोगे कि मेरे स्टडी रूम में वो पीरियोडिक टेबल भी क्यों लगा हुआ था, मैंने 2 साल प्रिपरेशन क्यों ही करी नीट की, मैंने लाखों रुपए कोचिंग में इन्वेस्ट ही क्यों करे जब मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। तो फिर गाइस उसके लिए पढ़ लो ना लास्ट में नीट वाले दिन जो रिग्रेट होगा वो ना हो, इसलिए पढ़ लो ना। तो उसके लिए ही मुझको पढ़ना है, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू शो यू गाइस कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, और मैंने क्या क्या चीज़ें फालतू चीज़ें मैंने करके रखी। मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ने क्यों ली, मैंने इतने सारे टेस्ट पेपर क्यों लिए, मैंने ये सब चीज़ें क्यों करी। और अगर मेरा नीट में नहीं हुआ तो फिर हम ये सोचेंगे कि ये मैंने क्यों करा, मतलब उसका फिर आउटकम क्या था। मैंने जो डेली मतलब इतनी ठंडी में 31 दिसंबर की सुबह सुबह जाके उठ के कोचिंग हम क्यों गए उस दिन मैंने टेस्ट क्यों दिया, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स क्यों करे मम्मी पापा सब लोगों ने मेरे लिए मिल के, जब मेरा नीट में होना ही नहीं था किसी ज़िंदगी में इस जन्म में इस समय। तो क्यों वो रिग्रेट ना रहे ना, इसलिए मुझको पढ़ना है। तो ठीक है गाइस, मुझको इतना ही कहना था इस वीडियो में। And guys, I would love to tell you, not love to tell you, but I would like to tell you, like I want to give you information that इस ड्रॉप ईयर में मेरी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है, कोई भी मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं, कोई भी फीमेल नहीं है, मतलब आई एम ऑल अलोन, नो फ्रेंड्स इन माई होम, लाइक क्योंकि मैंने ऑनलाइन ड्रॉप ईयर लिया है, नो ऑनलाइन नो ऑफलाइन नो नथिंग, ठीक है। एंड आई एम ऑल अलोन in this drop year, but I hope full and manifestation for my dream college की मुझको मिले। and also there is one more reason for my studying harder, because मेरे दादा जो थे वो आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर थे और मेरे पापा यूनानी फील्ड में, तो मुझको फैमिली हेरिडेटरी अपवर्ड करनी है, इसीलिए मुझको पढ़ना है नीट के लिए। तो या तो हमारी फैमिली से हमेशा से मेडिकल बैकग्राउंड ही रहा है, इसीलिए मुझको और ज़्यादा अपग्रेडेशन करना है। जैसा कि दादा जो थे वो आयुर्वेद उत्तर प्रदेश के फेमस कॉलेज लखनऊ में हमारे घर के पास आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। तो या गाइस, और मेरे पापा यूनानी फील्ड में, तो मुझको और अपग्रेड करना पड़ेगा, तो मुझको मैनिफेस्टेशन फॉर माय ड्रीम कॉलेज।
और गाइस मेरी ड्रॉप ईयर में कोई भी फ्रेंड नहीं है। मेरी एक कुलसुम फ्रेंड थी बट उसने भी मुझको धोखा दे दिया। लाइक वही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, सब कुछ थी, बट उसने धोखा दे दिया। और हम ये यूट्यूब पे बताना चाहते हैं क्योंकि सुनो, अगर मेरी वीडियो देखती हो कुलसुम, तो कहाँ गई वो प्रोमिसेस, वादे तोड़ दिए ना तुमने। हाँ जाओ जाओ छोड़ के, कौन ही मुझको याद रखेगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही मुझको कहना था और थैंक यू गाइस मेरी बकवास सुनने के लिए। और गाइज़ मेरे स्ट्रगल के भी बारे में मुझको थोड़ा सा बताना है कि अगर ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाती है, हमेशा मेरे फ़ोन की हमेशा स्टोरेज ही फुल हो जाती है यार। हमेशा मैंने मेमोरी कार्ड तक की 8 GB का लगा लिया, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं। अभी करोड़ों बार स्टोरेज फुल हुई है, मैंने फिर से फाइल्स डिलीट करी है और फिर से वीडियो बनाने बैठे हैं और अब जाकर मुझको चेंज करना है। तो ठीक है गाइज़, तो इस वीडियो को बंद करते हैं हम। स्टोरेज तो फुल हो ही चुकी है मेरे फ़ोन की, फिर हम एडिटिंग करेंगे। और गाइज़ क्या है मेरी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है गाइज़, क्या क्या बताएं हम इस वीडियो में। ठीक है चलिए चलते हैं, बाय बाय। और गाइज़ एक और प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, बट हम सब घूम ही नहीं पाते गाइज़। ऑनलाइन ड्रॉप ईयर लेने का मतलब है, मतलब घूमना ही बंद। ठीक है घूमना ही बंद, मतलब हर समय थोड़ी ना कोई पढ़ता है। बट अब मम्मी पापा को क्या ही मनाए, मम्मी पापा हमेशा, पापा को हमेशा याद रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एंड आई डोंट नो वाई गाइज, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, बट इन दिस एंड ऑफ द वीडियो आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। so please just imagine that I'm talking in English and I'm a cool guy. So guys I would like to tell you that in this YouTube channel जो मैंने बनाया है उसका नाम हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर साइमा इरफान ही रहेगा। चाहे मेरी शादी हो जाए तो भी ये साइमा इरफान ही रहेगा, मेरे पापा का नाम को कोई चेंज कर नहीं सकता। और वैसे हम एक और चीज़ आई वांट टू टेल यू कि देयर आर करोड़ों वीडियोस जो अनलिस्टेड पड़ी हुई हैं, मैंने अभी तक डाली भी नहीं है। और करोड़ों वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने एडिट भी नहीं करी हैं अभी तक के। तो जब वो एडिट करेंगे, जो पास्ट की वीडियोज़ है, नानी घर की वीडियोज़ है, इधर की वीडियोज़ है, उधर की वीडियोज़ है, तो फिर हम डालेंगे जब मेरे पास करोड़ भर का टाइम होगा। अब टाइम जब होगा तो फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और जब मुझको दिल से खुशी होगी तभी हम यूट्यूब वीडियोस एडिट करते हैं। और जब मुझको नहीं फील होता है, बहुत दिनों से, बहुत मन से, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि हम वीडियो बनाएं, पता नहीं क्यों मेरे दिल से आ नहीं रहा था, तो अभी मैंने बना लिया। तो गाइज़ मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बोल दी हैं। तो थैंक यू जो मुझको ये प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब बोलने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हम हैं नहीं। इंस्टाग्राम पे मेरे घर में सारे कज़न्स लोग हैं, सारे लोग हैं और सारी फ्रेंड्स हैं जो पूछती हैं कि कहती हैं कि इंस्टा पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों आ जाओ यार, फिर रील्स पे अलग ही लोगों को होते हैं ना। अब यूट्यूब पे एजुकेटेड लोग होते हैं, हम उधर चले I'm not saying that I am educated, but yeah, I don't wanna make रीलर की कोई मुझको रीलर बोले अच्छा नहीं लगा। यूट्यूबर बोले तो ठीक है, फिर भी डिसेंट है ना। तो मुझको यूट्यूब पे ही रहना है और हम कॉलेज में जाके तो इंस्टा डाउनलोड कर ही लेंगे। और हमेशा मेरे सामने सब लोग आके इंस्टा की बातें करने लगते हैं, इंस्टा की मीम्स बोलने लगते हैं और फिर मुझको कोई भी पल्ले नहीं पड़ता कि ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये सब लोग। फिर मुझसे कहते हैं इंस्टा पे आ जाओ, तुमको रीलें भेजेंगे। भाई हम कैसे आ जाएँ इंस्टा पे? इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के लिए भी स्टोरेज चाहिए, जो कि मेरे फ़ोन में है नहीं। रेडमी 8A मेरा फ़ोन का नेम है, तो इसके अंदर स्टोरेज उतनी होती नहीं है। 32 GB थी, मैंने 8 GB का मेमोरी कार्ड लगाया, बट वो भी नहीं, मतलब वो पता नहीं क्यों ले ही नहीं रहा है, मतलब वो है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है जो भी है। ठीक है गाइस, तो मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली इस वीडियो में, मुझे लगता है इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा। और ठीक है गाइस बाय। और याद रखिएगा मेरे जो भी हम वीडियोस डालते हैं ना, तो वो महीनों पुरानी होती है, बट ये वाली वीडियो जो है ये रिसेंट की आप समझिएगा, ठीक है। तो या गाइस